ముస్లిం మైనారిటీలందరూ ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి గెలిపించాలని కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకులు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. బక్రీద్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రజాసేవా భవన్లో ఈద్ మిలాద్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమని ముస్లిం మైనారిటీలందరూ చేతి గుర్తుకే ఓటేయాలని కోరారు. తాను ఆదిలాబాద్కు మంచి చేయడం కోసమే అమెరికా నుండి వచ్చినట్టుగా తెలిపారు. ఇన్నేళ్లు జోగురామన్న ఎమ్మెల్యేగా ఉండి మీ సంక్షేమం కోసం ఏం చేశాడని ప్రశ్నించారు. ఆయన ఆస్తులు పెంచుకోవడం తప్ప ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదని విమర్శించారు. ఈ 14 ఏళ్లలో జోగురామన్న ఎంతమందికి ఇండ్లు కట్టించాడని ప్రశ్నించారు. ఎంతమందికి ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేశాడని అడిగారు. ఒక్క ఇల్లు లేదు, ఒక్క రుణమాఫీ లేదు, పెన్షన్లు లేవు, మరి ఎమ్మెల్యేగా జోగురామన్న ఏం చేస్తుండని ప్రశ్నించారు. 5 ఎకరాల జోగురామన్న 5,000 కోట్లతో ఆస్తులు పెంచుకున్నాడు తప్పితే ప్రజల గురించి ఆలోచించలేదన్నారు. మరి ఇలాంటి ఎమ్మెల్యేను ఓడించాలా వద్దా అని ప్రశ్నించారు. అటు పాయల్ శంకర్ జీవితంలో ఎమ్మెల్యే కాడని అన్నారు. జోగురామన్న పాయల్ శంకర్ ఇద్దరు ఒకటేనని ఆరోపించారు. ఇద్దరిలో ఎవరికి ఓటేసినా వృధానే అని అన్నారు. 4 సార్లు జోగురామన్నకు అవకాశం ఇచ్చారని, ఒక్కసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలని కోరారు. కాంగ్రెస్ గెలిస్తే అభివృద్ధి అంటే ఎలాగుంటుందో చేసి చూపిస్తామన్నారు. అనంతరం తన క్యాంప్ ఆఫీస్ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన విందు భోజనంలో ముస్లిం సోదరులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా మైనార్టీ సెల్ చైర్మన్ ఎంఏ షకీల్తో పాటు పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎన్టీయూసీ జిల్లా అధ్యక్షులు మునిగెల నర్సింగ్, మైనార్టీ సెల్ చైర్మన్ ఎంఏ షకీల్ వసీం, అజ్బత్, మాజీ కౌన్సిలర్ ప్రభాకర్, గిమ్మ సంతోష్, నాగర్కర్ శంకర్, కొండూరి రవి, అల్లూరి అశోక్ రెడ్డి, ప్రభాకర్ రావు, రవికిరణ్ రెడ్డి, సంతోష్ రెడ్డి, కిష్టారెడ్డి, సంజీవ్, సంతోష్, పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు అందరికీ సోదరులందరికీ పేరు పేరున తెలియజేసుకుంటూ వారందరూ మరి ఆప్యాయంగా పిలిచిన వెంటనే, ఆహ్వానించిన వెంటనే ఇచ్చేసినందుకు వారికి మరోసారి ప్రత్యేకంగా అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ ప్రతి ఒక్క సోదరునికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. సోదరులారా, మన మైనార్టీ సెల్ డిస్ట్రిక్ట్ అధ్యక్షులు మిత్రులు షకీల్ గారు తాను ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి కృషి చేసినందుకు Bakrid is meant as a festival of sacrifice. త్యాగాలకు ప్రతీక అయినటువంటి బక్రీద్ పండుగ సందర్భం మీ అందరికీ सबको बहुत बहुत मुबारक. जस्ट एन इंट्रोडक्शन. सब मेहमानों को माइनॉरिटी समाज से सबको मेरा आदाब, नमस्कार. बहुत खुशी हुई आपसे सबको मिलके. ये बिल्डिंग पूरा काम किया 2 लोग, आपको इंट्रोडक्शन करना है उसको. और जाफर भाई पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क पूरा कंप्लीट किया. 2 साल से मेरे साथ है. जाफर भाई को सब तालियां बजाइए. और एक अली भाई है इधर. ओके, अली भाई पूरा वेल्डिंग का काम किया. पूरा पीवीसी का, यूपीवीसी का काम, वेल्डिंग का काम, पूरा रेलिंग, स्टील रेलिंग 2 साल से मेरे से काम कर रहे. इधर से 5 किलोमीटर दूर पे कोड़द हसनापुर गांव है मेरा. हसनापुर गांव, मेरा पिताजी किसान है. हमको बहुत लोगों को हमारा हसनापुर गांव में
बहुत लोगों को ज़मीन भी है, आई थिंक, राइट शरीफ? आप सब लोगों को ज़मीन है? शकील भाई, कोडद हसनापुर में शकील भाई और उसको खानदान को अभी 60 एकड़ का 70 एकर्स ऑफ लैंड है ओन, आई बिलीव। अभी भी आपका पिताजी बोल रहे थे आप 60 एकड़ का लैंड अभी भी है आपका खानदान को। कोडद हसनापुर, मेरा पिताजी एक ऑर्डिनरी किसान थे, अभी भी खेती करता है गांव में। सो मैं 5वीं क्लास तक मैं मेरा गांव में ही पढ़ाई किया। 6th क्लास टू 12th क्लास मैं सिरपुर कागज नगर आदिलाबाद में नवोदय स्कूल, एक डिस्ट्रिक्ट को एक स्कूल रहती, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसमें मैंने पढ़ाई किया 7 साल। उसके बाद इंजीनियरिंग बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस किया हैदराबाद JNTU में। उसके बाद सॉफ्टवेयर जॉब करते करते MBA पूरा किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और MBA करने के बाद अमेरिका में 23rd टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी मिजोरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुझे सीट आया। इसके बाद अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए। अमेरिका में 2 साल पढ़ाई किए, 2 years I have completed my masters. Then I have started नौकरी किया। नौकरी करते करते सॉफ्टवेयर कंपनीज लगाया, आर्टिफिन टेक्नोलॉजीज स्टार्ट किया 2010 में। 2010 में to 2023 my companies approximately they have 865 crores turnover we do, 865 approximately 900 करोड़ का टर्नओवर करते हैं अभी भी। टोटल 8 स्टेट्स में ब्रांचेस हैं, नेब्रास्का, कैलिफोर्निया, वर्मोंट, ओक्लाहोमा, कैंसस, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, टेक्सास, न्यू मैक्सिको। We have 8 states, we have branches in United States. And then I thought, okay, కమాయి करते करते తెలుగులో మీకు బాగా చెప్పచ్చు, ఇద్దరు మనుషులకి టైం తెలియదట. ఎవరా ఇద్దరు మనుషులు అంటే, ఒకడు పత్తలాడేటోనికి టైం తెలియదట, जो जुआ खेलता है उसको टाइम, अरे आपका बीवी बुला रहे बोले तो भी वो बोलता है कि अरे भी कल जाता हूँ मगर ये పత్తలాట पहला होना चाहिए. సో రాత్రి పగలు ఆయనకు తేడా తెలియదు. రెండోది డబ్బులు సంపాదించడానికి కూడా టైము పగలు రాత్రి పెళ్ళాం బిడ్డలు ఏం తేడా తెలియదు. కసితోని పని చేసినాం, बहुत मेहनत किए, करते करते बस इनका जो भी कमाई किया वो बस है और पब्लिक का सेवा करना चाहिए बोल के 2022 में 21 में मैं एक अच्छा डिसीजन लिया कि राजनीति में आके प्रजा सेवा पब्लिक सर्विस में आने का निर्णय लिया। और आपको सबको मालूम है, और 2021 के बाद जो सेवा कार्यक्रम में कर रहा हूँ आपको सबको मालूम है। एम्बुलेंस की सेवा करते, हमारा माइनॉरिटी लोग ज़्यादातर, हमारा 2 एम्बुलेंस में 1 एम्बुलेंस केवल माइनॉरिटी लोगों को ही यूज़ होता। अब सबको मालूम है बहुत लोग माइनॉरिटी लोग एम्बुलेंस सेवा यूज़ किया। और अन्नदानम हाफ लोग शुरू से माइनॉरिटी लोग ही यूज़ करते, जो कारपेंटर काम करते, जो हमाली काम करते. సో పేదరికంకు కులం ఉంటుందా? పేదరికంకు మతం ఉంటుందా? పేదరికంకు మతం ఉండదు, పేదరికంకు కులం ఉండదు. పేద బిడ్డ ఏ కులంలో ఉన్నా ఏ మతంలో ఉన్నా పేద బిడ్డనే. ఓన్లీ ఎ నేషనల్ పార్టీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. You're all working hard, you're not getting any benefit from the government directly, right? You're working hard for your family. మైనారిటీ లోగోं में बहुत लोग, చాలా మంది పేదలు ఉన్నారు, బాగా కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పటికీ పండ్లు పూలు ఉల్లిగడ్డలు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకొని కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నేను मेरा सलाम मेरा प्रणाम.
आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और फ्रॉम पास्ट मेनी मेनी डिकेड्स सेंचुरीज, सौ साल से, हजार साल से हम गंगा जमुना संस्कृति, वी आर ऑल एक भाई भाई जैसा हम जी रहे हैं. वी आर लिविंग लाइक ए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एंड देयर इसमें बहुत शक्ति है, वो बहुत different complications are there who wants to divide the society. నఫరత్ పహలనే के लिए నఫరత్, విద్వేషాలు రగిలించడానికి, మనుషుల మధ్య గొడవలు పెట్టడానికి, మనుషుల మధ్య కొట్లాటలు పెట్టడానికి नफरत का बाजार बन गया. तो ये नफरत को हम हराना है. We need to defeat this exploitation. ఈ విద్వేషాలని మనం ఓడించాలి. ఇది కాదు మన తాతలు తండ్రులు. మీరు చూసుకోండి, మన ఆదిలాబాద్లో ఎప్పుడైనా చూసుకోండి, ఏమంటాం మనం? కాక, మామ, చాచా, అన్న అని పిలుచుకుంటామా లేదా? అసలు మనకు చిన్నప్పుడు మాలాంటి పిల్లలు, చిన్నగా పెరిగిన పిల్లలకైతే ఆ పిల్లలకి వాళ్ళ మతం తెలియదు, వాళ్ళ కులం తెలియదు, తెలుస్తుందా? సో ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ సొసైటీ, డివైడ్ అవర్ కమ్యూనిటీ, డివైడ్ అవర్ ద బాండేజ్, ద లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. So we need to defeat them. We need to work hard for that. So that's why Rahul Gandhi ji says, so I joined in Congress party on May 8th in front of Priyanka Gandhi ji. Priyanka दीदी ने मुझे दिल्ली में भी बहुत अच्छा वक्त निकाला, टाइम निकाला. Thank you so much for her. Then again, entire Telangana, after Telangana formation, आफ्टर 2014 प्रियंका गांधी जी ने पहली बार तेलंगाना पे आई और मैं एक ही आदमी हूं अब तक प्रियंका गांधी जी के सामने तेलंगाना में जो पार्टी में ज्वाइन हुआ. सो उसके बाद 29 मई को मैं राहुल गांधी जी के साथ में अमेरिका चले गए. सो 13 डेज, 13 दिन राहुल गांधी जी से थे अमेरिका में. हम सिलिकॉन वैली घूमे, अब सबको मालूम है, तो आप बहुत फोटोज देखे हुए हैं. सो राहुल गांधी जी के साथ, सो कैन यू प्ले दैट वीडियो इफ पॉसिबल, दैट राहुल गांधी जी's US टूर वीडियो जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स. सो राहुल गांधी जी से हम कैलिफोर्निया में थे, 2 दिन कैलिफोर्निया में थे, 2 दिन न्यूयॉर्क में थे, 2 दिन वॉशिंगटन डीसी में थे. सो बहुत हार्ड वर्क किए और राहुल गांधी जी से मेरा टूर सक्सेसफुल टूर था. एंड देन अगेन आई केम बैक. अभी एक ही काम करना है, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को आदिलाबाद में हम जिताना है. मालूम है ना आपको, एक नेशनल पार्टी ही, एक राष्ट्रीय पार्टी ही आपका मदद कर सकता है, आपको आरक्षण दे सकती है, आपको रक्षा कर सकती है. आपका द हार्मनी बिटवीन ऑल अवर कम्युनिटी कैन बी ओनली मेंटेन्ड बाय द नेशनल पार्टी. दैट्स कांग्रेस पार्टी. दैट्स कांग्रेस पार्टी. दिस इज द टाइम. बहुत आपको एक नेशनल पार्टी को कांग्रेस पार्टी के साथ रहने का वक्त आ गया. गुड, वेरी गुड. दिस वाज द इंत कट చేసిన పిక్ అనుకో. డూయింగ్ ఏ లంచ్ इन कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली. रहने दो ये. और so on 29th May to June 10th, almost like 12 days, 13 days मैं राहुल गांधी जी के साथ था. तो we were, you know the title, नफरत का बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे. So that was the thing.
कर रहे थे। तो आप सबका मदद चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आप याद करिए। बहुत हमारे माइनॉरिटी भाइयों को घर नहीं है। घर हमारा मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में पहला हामी घर बनाने के लिए हर फैमिली को, एक परिवार को 5 लाख रुपीस देंगे। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद 5 लाख रुपीस will be given to all the poor people who wants to build the house. And then again 500 रुपए में एक सिलेंडर वादा किया कांग्रेस पार्टी ने। सो अभी 1250 रुपए है ना सिलेंडर, एक सिलेंडर। सो 500 रुपए में एक सिलेंडर कांग्रेस पार्टी ने वादा किया। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती वो वादा निभाती, आपको मालूम है। कांग्रेस पार्टी जो भी वादा करती वो वादा निभाती। तो कांग्रेस पार्टी जो किसानों को जो हामियां दे रहे। और एक बात, आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी के सिवाय कुछ तेलुगुदेशम ने भी किया। जो प्लॉटा दिया गया वो पूरा कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपको सबको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने प्लॉटा बांटा। ऑल द प्लॉट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कांग्रेस पार्टी इन द टाउन। मसूद अहमद जी का पीरियड में था और उसके बाद CRR का पीरियड में था। कांग्रेस पार्टी ने अप्रोक्सीमेटली 32,000 प्लॉट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन आदिलाबाद टाउन। अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्लॉट बांटा गया कांग्रेस पार्टी के जमाने में। और अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये BRS जोगू रामन्ना जी ने एक प्लॉट भी नहीं बांटा, एक प्लॉट भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, एक घर भी नहीं बनाया। ओ అవేమి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లని తన్నితే కూలిపోయే ఇల్లు కట్టిన మీరు చూస్తున్నారు కదా। ఇట్లా గుద్దుతే అవి గోడ కూలిపోతుంది, అవి రాలిపోతున్నాయి। और डबल बेडरूम बहुत गंदा। और भी लाइक 500 या 600 घर बनाया डबल बेडरूम। तो घर नहीं बनाया पूरा लोगों का। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद ही प्लॉट बांटने के लिए तैयार है और घर बनाने के लिए तैयार है। आप दोनों याद कर लीजिए। आपका माइनॉरिटी भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी ही एक काम कर रहे हैं। और आपको आप कंपेयर कीजिए माइनॉरिटी समाज को जोगू रामन्ना ने क्या दिया, माइनॉरिटी समाज को क्या दिया। जी जी जी। और एक काम आपको, रिम्स इधर है। रिम्स में आपका माइनॉरिटी बच्चों के लिए कितना नौकरी मिला, कितना नौकरी मिला? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कोई कुछ जॉब के लिए 10 लाख जोगू रामन्ना के छोटा बच्चे के पास लेके जाना पड़ता है। एक सूटकेस लेके जाना पड़ता है। सही बात है नहीं बात, गलत बात नहीं है। तो 15 साल से आदिलाबाद को एक ही MLA है जोगू रामन्ना। हम 4 बार MLA जीता है। 2009, 2012 बाय इलेक्शन, 2014, 2018, 4 बार हम MLA जीता है। हमको क्या मिला? आदिलाबाद लोगों को, जनता को क्या मिला? माइनॉरिटीज को क्या मिला? कितने प्लॉटा मिला, कितने घर मिला? रिम्स हॉस्पिटल ने कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया रिम्स हॉस्पिटल। उसमें डॉक्टर्स भी अपॉइंट नहीं कर रहे। और आपका बच्चे के लिए नौकरी के लिए 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए जोगू रामन्ना का बच्चा पूछ रहे। और जोगू रामन्ना ने क्या डेवलपमेंट किया ये 15 साल में? कहां जमीन होना है वो जमीन कब्जा कर लिया, प्लॉटा कब्जा कर लिया, नाला कब्जा कर लिया। मैं अकेले आदमी हूं जो आदिलाबाद में जोगू रामन्ना के खिलाफ पूरा सवाल पूछ रहा हूं। मैं अकेले आदमी हूं।
अनफॉर्चुनेटली इधर अनफॉर्चुनेटली दौर्भाग्य की बात है कि जो जोगू रामन्ना के पास पैसे लेता है वो जोगू रामन्ना को सवाल ही पूछता नहीं, सवाल ही पूछता नहीं। सब लोग जोगू रामन्ना के पास, ये मेरा बात नहीं है, ये पूरा आदिलाबाद के बात है। सब लोग जोगू रामन्ना के पास पैसे लेता है और उसका मुंह चुप रहता है। आपके घर के बारे में, प्लॉट के बारे में, आपके कोई भी सुविधा के बारे में, कानापुर का चेरू है ना, उसका पूरा कब्जा कर लिया। अभी वो कितना गंदा है देखो, एक बार सिद्दीपेट में एक बार जाके देखो आप, रोपवे बन रहा है, टैंक बंड बन रहा है, शिल्पारामम कॉन्फ्रेंस रूम्स बन रहा है, गोल्फ कोर्स बन रहा है। आदिलाबाद को क्या मिला? मेरे को एक टेक्सटाइल पार्क मिला था और उसको भी चोरी करके वरंगल को लेके गए। पूछने वाले नहीं है, पूछने वाले नहीं है। जब हम सवाल नहीं करते हैं, हमको कुछ भी सुविधा नहीं मिलते, हम ये पूरा नहीं होते, वादा पूरे नहीं होते, हम खड़े करके पूछना है। एक बात बोलता हूं, जब हमारा कंबाइंड आंध्र प्रदेश था बिफोर तेलंगाना, 23 जिला था, 23 डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर। उसमें हमारा क्या स्थान है, क्या पोजीशन था? 23 पोजीशन। हमारा डेवलपमेंट में, विकास में 23 पोजीशन। अभी 33 जिला है, बन गया, 33 डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर तेलंगाना। 33 में हमारा पोजीशन क्या है? 33। तो क्या मिला आदिलाबाद को? 10 साल का टीआरएस का जमाने में क्या मिला? एक बात बोलता हूं, विलेजेस के लिए तो पूरा प्रोजेक्ट्स कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। सातनाला प्रोजेक्ट कौन बनाया? कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी। मसूद अहमद जी के जमाने में सातनाला प्रोजेक्ट बन गया। और लक्ष्मीपुर रिजर्वायर कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी। सोनकास प्रोजेक्ट कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी। मत्तड़ीवागु प्रोजेक्ट कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी। रिम्स ने कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी। सब कांग्रेस पार्टी बनाया। ये रोड, ये पूरा बाईपास रोड किसका जमाना में बना है? ये पूरा हाईवे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, नेशनल हाईवे 44, NH 44 कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में बनाया। क्या मिला हमें टीआरएस के सत्ता में? जब टीआरएस के सरकार से हमें क्या मिला? पेंशन। अरे भाई, पेंशन जब चंद्रबाबू चीफ मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री था, तब भी पेंशन मिल गया। वाईएस राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर था, तब भी हमें पेंशन मिल गया। रोशయ్య सीएम था, उसके बाद नल्लारी किरण कुमार रेड्डी सीएम था, और अभी केसीआर सीएम है। सबका जमाने में हमको पेंशन मिला। इसके घर से नहीं दे रहे हैं ना पेंशन। और बस चार्जेस कितना बढ़ गए? कितना बढ़ गया बस चार्जेस? करंट चार्जेस कितना बढ़ गया? करंट चार्जेस बढ़ गया, बस चार्जेस बढ़ गया। घर टैक्स, इंटी टैक्स कटिस्तारू, हाउस टैक्स बना देते, करंट बिल बना देते आपसे, सब टैक्सेस, नाला टैक्स बना देते आपसे। तो आपके कॉलोनी में रोड क्यों नहीं डालते? रोड क्यों नहीं डालते? नाला क्यों नहीं बनते? हम गए थे कानापुर, बुक्कलगुड़ा और पूरा वो स्लम एरियाज घूमे थे। बहुत गंदा है, नाला नहीं है, रोड़ा नहीं है, घर नहीं है। मैं एक बात बोलता हूं, आप याद रखो, 15 साल से ये जोगू रामन्ना का सत्ता पलटना है, हम चेंज करना है, चेंज करना ही है। नहीं है तो 15 साल में 4 बार जिताया, हमको कुछ नहीं मिला। और एक बार, अब 4 बार जोगू रामन्ना को जिताए। मैं आपसे विनती है, एक बार कांग्रेस पार्टी को मौका दो, एक बार। 4 बार 2009, 2012, 2014, 2018 में 4 बार जोगू रामन्ना को मौका दिया। एक बार कांग्रेस पार्टी को मौका दो। विकास हम दिखाते हैं, विकास आप खुद विकास कर सकते हैं। हम कांग्रेस पार्टी आपके साथ है,
कांग्रेस पार्टी पे भरोसा रखो। कांग्रेस पार्टी विकास पिछले बार किए हैं और विकास करने के लिए तैयार है। और उन लोगों से विश्वास नहीं रखो जो जोगुरामन से पैसा लेता है, जोगुरामन से पैसा लेता है, विश्वास मत रखो। मेरा इंटरव्यूज भी देख सकते हैं आप। मैं जितना मेरा जीवन में जितना पैसा कमाया उसमें से आखिरी रुपया भी, आखिरी पैसा भी जोगुरामन को हराने के लिए खर्चा करूंगा, मगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होऊंगा मैं जोगुरामन से। जोगुरामन से प्लाटा धंधा नहीं करता हूं। प्लाटा धंधा, कब्जा का धंधा कर रहे जो लोग कर रहे हैं, आपको मालूम है, आपको मालूम है। दिन भर जोगुरामन को विमर्शा करते हैं, दिन भर जोगुरामन को गालियां देते हैं, रात को जाके जोगुरामन के पांव पे पड़ जाते हैं, पैर छोड़ते, पैर पकड़ते हैं। अरे वो जमीन का कब्जा करना है, ये जमीन का कब्जा करना है। हाँ? कुछ लोग कब्रिस्तान को कब्जा करते। कौन कब्जा करते हैं कब्रिस्तान को, आपको मालूम है? कुछ लोग नाला, प्लॉटा, गवर्नमेंट का प्लॉट, गवर्नमेंट का जमीन पूरा कब्जा में है। हजारों एकड़ का लैंड एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा के प्लॉटा करके लाखों रुपए को, करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके। वो गवर्नमेंट का लैंड है, वो जमीन को प्लॉटा करके गरीबों को देना है। और मैं एक वादा करता हूं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद ये पूरा जितना भी गवर्नमेंट लैंड है, इमीडिएटली सत्ता में आने के बाद तुरंत उसको प्लॉटा डिवाइड करके पूरा गरीबों को बेच दे, बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गरीबों को। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। आदिलाबाद में गरीब, बहुत गरीब लोग हैं, उसमें से माइनॉरिटी में 90% ऑफ द माइनॉरिटीज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। वो पॉवर्टी लाइन, गरीबी लाइन से भी बहुत गरीबी में है, उसको बहुत लोगों का घर नहीं है, प्लॉटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी आने के बाद, और मैं एक ही वादा देता हूं, आई एम सॉरी टू से दिस, ये बहुत दुर्भाग्य बात है, 90% ऑफ लीडर्स इन आदिलाबाद, 90% लीडर्स आदिलाबाद में जो रात में जोगुरामन से धंधा करता है। 90% ऑफ द लीडर्स आदिलाबाद में जोगुरामन से रात में धंधा करता, सुबह रात मिलके जुलके रहता, जस्ट पार्टियां चेंज बोल के आपको एक सिनेमा दिखाता। सी, सत्ता पलटना है तो लोगों केवल जस्ट नॉट द चेंज ऑफ ए पर्सन, एक आदमी को निकाले दूसरा आदमी को कुर्सी पे बैठने दिया। सत्ता पलटना है बोले तो पूरा जोगुरामन जो जो काम किया वो हम नहीं करना है, जो जो काम बाकी है उसको पूरा करना शुरू करना है विकास के लिए। मैं तैयार हूं, आप भी सोच लो। आप भी, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं, अच्छा पढ़ाई किया हूं, नौकरी किया हूं, कंपनीज धंधा किया है, सॉफ्टवेयर का कंपनीज लगाया। आपसे मेरे विनती है तो एक बार कांग्रेस पार्टी को मौका दे और कांग्रेस पार्टी का हामी पत्र, घोषणा पत्र पूरा आप याद करो। कांग्रेस पार्टी ने जो जो वादा किया, 5 लाख रुपए एक घर बनाने के लिए, और एक परिवार में दादा दादी है तो दादा दादी को मिला के 5,000 रुपया पेंशन, दोनों को मिला के 5,000 रुपए पेंशन। और इसके बाद बेरोजगार भत्ता, जो पढ़ाई किया, जो हमारा समाज में पूरा पढ़ाई किया, वो पढ़ाई करने लोगों को 4,000 रुपये, 4,000 रुपये महीने बेरोजगार भत्ता, निरुद्योग वृत्ति 4,000 रुपए एक महीने में। वो जिंदगी भर आता नहीं आता, तो कुछ साल तक आता, क्योंकि वो विद्यार्थी पढ़ के और अच्छा जॉब में चले जाए, नहीं तो सॉफ्टवेयर जॉब ढूंढे, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब ढूंढो, ऐसा कुछ साल तक देते, प्रति महीना 4,000 रुपए। सो कितना पूरा 48,000 रुपीज पर ईयर। और उसके बाद किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफी, 2 लाख रुपए कर्ज माफी,
और छोटा किसान के लिए, बड़ा किसान के लिए नहीं, 50 एकड़ वालों को, 100 एकड़ वालों को नहीं, छोटा किसान को 15,000 रुपए रैतु बंधु देते और उपाधि हामी कूली, रोजगार हामी वालों को महीने में 1,000 रुपए, सालीना 12,000 रुपए उपाधि हामी कूली लोगों को उसके लाइक पेंशन, लाइक मिनिमम गारंटी पैसे देते। 500 रुपए में एक सिलेंडर देते। कांग्रेस पार्टी जब था आपको मुफ्त में ऑपरेशंस किया कि नहीं? आरोग्यश्री ऑपरेशंस, हार्ट ऑपरेशंस, ऑर्थोपेडिक ऑपरेशंस, कभी किसी का हैंड को चोट लगी या पैर को चोट लगी, मुफ्त में ऑपरेशंस किया आरोग्यश्री में। वो आरोग्यश्री फिर लाएंगे और फिर मुफ्त ऑपरेशंस करवा देंगे। और कॉलेज रिएम्बर्समेंट, याद करो 2004 से 2014 तक माइनॉरिटीज को 4% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया और उससे बहुत लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, गवर्नमेंट जॉबर्स बने। आप ये बात नहीं बोलो, 12% का रिजर्वेशन का प्रॉमिस कौन किया? केसीआर ने किया। 12% माइनॉरिटीज को 12% रिजर्वेशन का वादा केसीआर ने किया। अभी ये 4% को भी निकालने के लिए तैयार हो रहे हैं। यस, सो जो भी फीस रिएम्बर्समेंट है, कॉलेज फीस रिएम्बर्समेंट, जब राजशेखर रेड्डी थे, जब वाईएस थे, जब कांग्रेस पार्टी थे, सब कॉलेज स्टूडेंट्स को हम मुफ्त एजुकेशन दिलाए। तो वो मुफ्त एजुकेशन में से माइनॉरिटी लोग बहुत बेनिफिट हो गया, भलाई हो गया। तो अब की बार बहुत बेनिफिट करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। अब तो मुफ्त एजुकेशन देने के लिए तैयार है, कॉलेज फीस रिएम्बर्समेंट। और जो 18 साल से ज़्यादा हुई बालिका विद्यार्थियों को, उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगा। और ऐसा वादा पूरा घोषणा पत्र में शामिल किया कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत कर दीजिए। सो हाथ से हाथ जोड़ो, ये नफरत को निकाल दीजिए और मोहब्बत को फैलाना, नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे और हम आदिलाबाद का विकास करेंगे। एक बात याद रखो, आपको बहुत आपको सुनाना है। मैं जो भी जोगू रामन्ना के पीरियड में करप्शन थे, जोगू रामन्ना का छोटा बच्चा 30 करोड़ से घर बनाया गुंडला पोचमपल्ली मेडचल में। 30 करोड़ से 30 करोड़ पैसा कैसे आया? 5 एकड़ का जमीन वाले आदमी थे जोगू रामन्ना। दीपाईगुड़म में भैंस चलाते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दीपाईगुड़ा लोगों को पूछिए, जाके दीपाईगुड़ा गांव के लोगों को पूछो। 5 एकड़ वाले जमीन वाले जोगू रामन्ना थे। आप जो बड़े लोग समझ रहे हैं वो भी जोगू रामन्ना से पैसे लेते हैं। जो बड़े आदमी बड़े नहीं खाते पैसा, वो भी जोगू रामन्ना से पैसा लिया है। मैं పెద్దోళ్ళు అనుకుంటున్నారు కదా ఆదిలాబాద్లో, ఆ పెద్దోళ్ళు కూడా జోగు రామన్న దగ్గర పైసలు తినరు. నేను నా భార్య ఇద్దరం కలిసి ఏ టెంపుల్లో అయినా మేము ఇద్దరం తడి బట్టలతో ప్రమాణం చేస్తాం ఈ విషయం. మీరు ఎవరు పెద్దోళ్ళు అనుకుంటున్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా పైసలు తినరు జోగు రామన్న. इतना पैसा कमा, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? महाराष्ट्र में हजारों करोड़ की एकड़ जमीन खरीद लिया जोगू रामन्ना कहते। हैदराबाद में हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी, 5 अब ये पैसा पूरा कहाँ से आया? हर काम में कमीशन लेना, रोड़ा बनाने में 40% कमीशन, ब्रिज बनाने में 40% कमीशन, नालियां बनाने में 40% कमीशन, दलित बंधु में 40% कमीशन, शादी मुबारक में भी पैसे लेते हैं 20,000 रुपए 30,000 रुपए, शादी मुबारक का चेक देने में भी। यही विकास है 15 साल से, यही विकास है। आपको कुछ नहीं मिला, आपको केवल आपका मेहनत से आप काम कर रहे हैं और आपका परिवार को चला रहे। मैं आपको इधर आपका वक्त निकाल के बहुत टाइम दिया, मगर ये 5 एकड़ जमीन वाले जोगू रामन्ना 5,000 करोड़ रुपया 5,000 करोड़ पैसा कैसे कमाया? ये पूरा आदिलाबाद जनता पूछ रहे हैं। जोगू रामन्ना ये सवाल को जवाब देना ही पड़ता है। मगर इस बार
एक बार मुझे मौका दीजिए, जोग रामन्ना को हरा के गढ़ में बिठा देता हूं मैं। जोग रामन्ना चित्तु चित्तुगा ओडिंची इंట్లో కూర్చోబెడతా। तो एक बार कांग्रेस को सब लोग एक बार मौका दीजिए। और आप तो आपको सोच रहे हैं, अभी केसीआर साहब ने इतने दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला, अभी अपॉइंटमेंट क्यों मिल रहा है दिल्ली में? दिल्ली के बड़ा बड़े लोगों से केटीआर ने मिल रहा है, बीजेपी सरकार के लोगों को इतने बार नहीं मिला, अभी अपॉइंटमेंट कहां से आ रहे हैं? क्योंकि टीआरएस का जो एमएलए है, जो एमपी बनता है, ये पूरा बीजेपी को मदद देगा, बीजेपी को मदद करेगा। आपको जो एमपी सीट टीआरएस जीतता है वो बीजेपी क्यों పరారు हो गया है? ఎందుకు పారిపోయింది బీజేపీ? ఎందుకు పారిపోయింది అంటే కనుక టీఆర్ఎస్ కు సపోర్ట్ చేయడానికి। अभी ये పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, वो జూపల్లి కృష్ణారావు, ये पूरा लोग कांग्रेस पार्टी में, किशन नगर लक्ष्मारेड्डी, मेदक में शशिधर रेड्डी, ये पूरा कांग्रेस पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? क्योंकि बीजेपी परार हो गए। तो अभी कांग्रेस और टीआरएस दोनों के बीच फाइटिंग रहता। और एक बात तो बोलता हूं, पायल शंकर उसका जिंदगी में कभी भी नहीं जीतेगा, जिंदगी में नहीं जीतेगा। उसके ऊपर प्लॉटा कब्जा करने का, जमीन कब्जा करने का, नाला कब्जा करने का, सेटलमेंट करने का, धंधा कर 2 नंबर धंधा करने का, व्यापारियों से पैसे पूछना, ये पूरा आरोप है, पूरा आरोप है। और जिंदगी में नहीं जीतता, क्योंकि लोगों को आपका कैरेक्टर मालूम होता। एक जीप क्लीनर काम किए आप, आपको इतना प्लॉटा घर कैसे आया, इतना जमीन कैसे आया पायल शंकर को? कभी पूछे? एक जीप क्लीनर था पायल शंकर, कौन सा धंधा किया, कौन सा फैक्ट्री लगाया? अब तो एक वेल्डिंग शॉप है, आपको फ्रूट शॉप है, आपको एक किराना शॉप है, आपको एक लस्सी का शॉप है, आपको बिरयानी पॉइंट है। पायल शंकर को कौन सा शॉप था? कैसा पैसा कमाया? जवाब दो। मैं जोग रामन्ना को भी यही सवाल पूछता हूं, आप कौन सा धंधा किए, इतना पैसा कैसे आया? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा लूटना, चोरी करना, उसको बांटना, इधर गलची वाटल पंचुकोवడం। तो काका वोट काटना, ये फूटना, ये बात ही नहीं आता। कांग्रेस पार्टी को पूरा माइनॉरिटी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पूरा। ये अपने खुद भलाई के लिए, खुद भलाई के लिए, खुद विकास के लिए, जो आपका कांग्रेस पार्टी ने किया, आपको जो आपका विकास माइनॉरिटियों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो इससे अगले इलेक्शन में 90% ऑफ द माइनॉरिटीज कांग्रेस पार्टी को ही वोट देने के लिए तैयार है। आपका सबका मेरा विनती है, कांग्रेस पार्टी को वोट दे और जिताए। फ्रेश रिक्रूटमेंट करेंगे, फ्रेश रिक्रूटमेंट करेंगे। जो पढ़ाई किया, जो अच्छा पढ़ाई किया, जो माइनॉरिटी का समाज है, कोई एससी समाज है, एसटी समाज है, कोई माइनॉरिटी समाज है, सबको हम जॉब्स देंगे, नौकरी देंगे। ये तो मेरा वादा है। मैं आदिलाबाद को एक क्लीन पॉलिटिक्स और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, क्लीन पॉलिटिक्स और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन का वादा करता हूं आपका भलाई के लिए। एक बार विश्वास रखो। 4 बार जोग रामन्ना को मौका दिया, एक बार मुझ पे विश्वास रखो, एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए। आदिलाबाद को मैं विकास करके ही दिखाऊंगा। दिस इज माय मेन इंटेंशन। ये मेरा प्राइमरी गोल है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू डेवलप आदिलाबाद टू द नेक्स्ट लेवल। वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज। और ये भी बता दूंगा मैं, चाचा, ये टीवियाँ, ये एसी, ये कैमरा, मोबाइल फोन्स, बाइक्स, कार्स, 90% ऑफ इसमें से 90% इंडिया में तैयार हो रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। मेरा जीवन का एक गोल है, मेरा ड्रीम है कि मेरा गोल है, मेरा ड्रीम है आदिलाबाद को
मैं अमेरिका या जापान या जर्मनी कोई देश भी गए, एक टीवी तैयार करने का फैक्ट्री या बाइक तैयार करने का फैक्ट्री या मोबाइल फोन तैयार करने का फैक्ट्री, एसी तैयार करने का फैक्ट्री, एक फैक्ट्री मेरा जिंदगी में मैं आदिलाबाद को लेके ही आऊंगा। एक तो फैक्ट्री में लेके आऊंगा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी वो फैक्ट्री लेके आने तक मर जाता रहे। आई विल नॉट डाई अंटिल आई गेट ए फैक्ट्री हियर एंड वी सो दैट एक 8,000 से 10,000 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। हमको आदिलाबाद को क्या कमी है? एक जबरदस्त नेशनल हाईवे है। अब कितने घंटे लगते थे हैदराबाद से आदिलाबाद? पिछले 8 घंटे 9 घंटे लगते थे, अभी 4 घंटे में पहुंच सकते हैं हैदराबाद, 4 घंटे में। हमको वाटर रिसोर्सेस है, पानी है, गवर्नमेंट का जमीन है, गवर्नमेंट लैंड्स है, जमीन है, पानी है, रोड है। तो आदिलाबाद फैक्ट्री लाने के लिए एक बेस्ट प्लेस है। हम ला के दिखाएंगे, कुछ भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लाएंगे आदिलाबाद में, और आदिलाबाद में एक 8,000 से 10,000 नौकरी दिलवा के हम जनता को दिखाएंगे। ये मेरा वादा है। तो केसीआर का वादा देखो, क्या वादा किया? करीमनगर को न्यूयॉर्क करते, हैदराबाद को लंदन करते, माइनॉरिटियों को 12% आरक्षण देते, एससी को 3 एकड़ का जमीन देते। ये पूरा केसीआर का वादा है। मैं सीसीआई ने कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसको रन करने के लिए बहुत कोशिश किया। आपको मालूम है सीसीआई फैक्ट्री ने कांग्रेस पार्टी ने लाया, और वो सीसीआई और ये रिम्स ये कांग्रेस पार्टी का जो वादा नहीं था, मगर वो निभाया। सीसीआई लाया और रिम्स ने भी अपना घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं किया था, फिर भी दिया, మేనిఫెస్టోలో లేకుండే అది। సో నేనేమంటున్నా అంటే అన్న, ఈ ఏసీలు టీవీలు అన్నీ కూడా, బైకులు అన్నీ కూడా మన దేశంలో తయారవుతున్నాయి। ఎక్కడ తయారవుతున్నాయి? మరి మన దేశంలో మన దగ్గరనైతే తయారవ్వట్లేదు। ఎక్కడో గుర్గావ్లో, तंजावुर में, चेन्नई में, पूना में मैन्युफैक्चर हो रहा है। मैं बोल रहा हूं वो फैक्ट्री आदिलाबाद में क्यों नहीं लगाना चाहिए? आप 10वीं क्लास 10th क्लास फेल कैंडिडेट को एमएलए बना देते तो उसको क्या है, जमीन को कब्जा करने एक ही मालूम होता है उसको, पैसे 40% कब्जा, 40% कमीशन कैसे निकाल? नाला में, रोड बनाने में 40% कमीशन पूछना आता है। ए नाला बनने के लिए कितना पैसा होता है? 1 करोड़ होता है। ओके, 40% 40 लाख हमारा गांव घर को भेजिए, मैं आपका नाला बनाता हूँ। उसको 10वीं क्लास फेल है, जो जिनको हम एमएलए जीतते हैं, वो उसका ऐसे ही औकात होता है, उसको कुछ नहीं, एक जमीन कब्जा करना, पैसे वसूल करना। मैं एक बात बोलता हूँ, अभी వరల్డ్ ఈజ్ చేంజింగ్, ప్రపంచం చాలా ముందుకెళ్తుంది। ఈ ముందుకెళ్లే ప్రపంచంలో మనం ఎందుకు తీసుకురాకూడదు? నేను అదే చెప్పాను, ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్। मैं ये करवा देता हूं बोल के नहीं बोले थे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट अ फैक्ट्री टू आदिलाबाद फैक्ट्री लाने के लिए कोई ना कोई तो कोशिश करना पड़ता है ना। कहाँ ఎక్కడో ఒక చోట పని మొదలు పెట్టాలి కదా। 1000 మైల్స్ भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर का था, एक ना एक जगह स्टार्ट करना ही पड़ता ना। సో ఎక్కడో కన్యాకుమారిలో కాశ్మీర్లో మొదలు పెట్టాల్సి వస్తుంది। సో నేనేమంటున్నా అంటే आदिलाबाद की ఒక फैक्ट्री ఎట్టి పరిస్థితిలో తేవడానికి నా ప్రయత్నం చేస్తా। मैं कोशिश करता हूँ कोई भी फैक्ट्री होने दो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग होने दो, बाइक मैन्युफैक्चरिंग। अभी देखो चंद्रबाबू नायडू का हार्ड वर्क से वो आंध्रा में किया कार फैक्ट्री आया अनंतपुरम में। किया का कार मैन्युफैक्चरिंग अनंतपुरम में हो रहा है। अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो किया कार से ना वो अनंतपुरम में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। सो हैदराबाद में नहीं, वाइजैग में नहीं, अमरावती में नहीं, अनंतपुरम एक रिमोट प्लेसेस, आदिलाबाद जैसा बैकवर्ड प्लेस है। तो పొలిటికల్ మోటివేషన్ హేతో రాజకీయ చిత్తశుద్ధి ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా అద్భుతాలు జరుగుతాయి। కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక నేను రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళైనా ఆయనకు మొక్కైనా నేను ఆదిలాబాద్కి ఫ్యాక్టరీ తీసుకొస్తా।
మన ప్రయత్నం हम कोशिश तो करना है, उसके बाद भगवान की दुआ है, भगवान की दुआ है, कोशिश तो करना है, कोशिश नहीं किए तो कुछ भी नहीं आएगा। कि टीआरएस के सरकार में सब कुछ बंद हुआ, सब कुछ बंद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही खुल सकते हैं। और ये भी बताना कि टीआरएस और बीजेपी दोनों बैकग्राउंड में అంటే చీకట్లో ఒప్పందం చేసుకున్నారు। जो टीआरएस के वादा दिया वो कभी नहीं निभाए। माइनॉरिटियों को कुछ नहीं मिला एक्सेप्ट आप जो काम कर रहे हैं अपना परिवार को आप మీ కష్టం చేసుకొని కైకిల్ చేసుకొని తింటున్నారు। మైనారిటీ లోగో बहुत ఎడ్యుకేటెడ్ है, చైతన్యవంతులైనరు, ఎడ్యుకేటెడ్ అయినరు। వాళ్ళు ఎప్పుడు జోగురామన్న పుకార్లని నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు। బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ఇద్దరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇద్దరు ఒకటే అని ఇప్పుడు నడుస్తుంది। మీకైతే తెలుసు కదా అసలు ఎందుకు బీజేపీ ఇక్కడ నుంచి పరారైంది తెలుసా మీకు? ఈసారి బీజేపీకి మెజారిటీ ఫుల్ మెజారిటీ రాదు సెంట్రల్లో। 180 to 200 సీట్స్ వస్తాయి అనేది మీకు అర్థమైందా? 182 to 200 సీట్స్ లోక్సభ సీట్స్। ఇప్పుడు ప్రాంతీయ పార్టీలు రీజనల్ పార్టీ का मदद चाहिए, रीजनल पार्टी का मदद चाहिए, तो इसलिए टीआरएस का मदद जो 17 लोकसभा सीट्स है जो भी टीआरएस विन हुआ वो बीजेपी का सीट से ఈ 17 లోక్సభ స్థానాలు గెలిస్తే అవి బీజేపీకే మద్దతు గెలుతాయి కదా। మీకు అర్థమైందా? 2009లో ఎలక్షన్ రిజల్ట్ రాకముందే కేసీఆర్ సాబ్ని బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలకు వెళ్ళి వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తా అన్నారు, మీకు తెలిసిందే కదా అన్న। సో నేనేమంటున్నా అంటే అట్లా కొన్ని రీజనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి, అందులో ఎన్ని సీట్లు టీఆర్ఎస్కి వచ్చినా అవి బీజేపీకి వచ్చినట్టే, ఎన్ని ఎమ్మెల్యే సీట్లు టీఆర్ఎస్కి వచ్చినా అవి బీజేపీకి వచ్చినట్టే। వాళ్ళిద్దరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆపరేషన్స్ మొదలుపెట్టిండ్రు। సో అదంతా మీకు రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది। సో ఒక్కటన్నా రాజకీయాలలో అన్నిటికంటే ముఖ్యం మైనారిటీస్కి ఏమొచ్చింది ఈ 10 ఏళ్ళల్లో, మీ బతుకులు ఏం మారినాయి, మీ పిల్లలు ఏం చదువుకుంటున్నారు, మీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎంత సహాయం అందింది, ఇది చాలా ముఖ్యం। ఏ బేరీ చేసుకోండి మీరు ఒక పేపర్ మీద, మా ఇంటికి ఏమొచ్చింది, నాకు ఇల్లు వచ్చిందా, పింఛన్ వచ్చిందా, రేషన్ కార్ड వచ్చిందా। ఒక 5 साल में माइनॉरिटीज में जो नया शादी हुआ है उसको एक भी रेशन कार्ड नहीं मिला, एक रेशन कार्ड, एक जो नई शादी हुई उन लोगों के एक रेशन कार्ड, एक भी रेशन कार्ड नहीं मिला। बहुत लोगों को पेंशन्स नहीं मिल रहा है। तो ऐसा बहुत सवाल है। आप एक ही देखो विकास के मुद्दे पे 10 साल में जो आपको वादा किया ये बीआरएस पार्टी ने, टीआरएस पार्टी ने वादा निभाया या नहीं निभाया, आप एक बार सोच लो। ये मेरा विनती है आपसे। ले सकता है और उसके ये लीडर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 101% ये कुछ कर सकता है बोल के माइनॉरिटीज में चेंजेस आ गया, कल से शुरू हो गया और आगे चल के 100% हर माइनॉरिटी भाई कांग्रेस को भी। थैंक यू आसिफ भाई। और ये बात आप भूल जाओ, अभी पायल शंकर अभी रेस में नहीं है, उसका कांग्रेस में कोई टफ हार्ड कैंडिडेट, एक टफ फाइट देने वाला एक स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं था, इसलिए पायल शंकर सेकंड पोजीशन में आ रहे हैं। पायल शंकर ये बार रेस में नहीं रहता, जोगू रामन्ना और कंदी सीनन्ना के बीच ये वार रहता। अब जोगू रामन्ना और बीआरएस और कांग्रेस, जोगू रामन्ना और कंदी सीनन्ना के बीच फाइट रहता। अब जो जोगू रामन्ना से गवर्नमेंट का बेनिफिट्स लिया, जोगू रामन्ना से हैप्पी है, अब संतुष्ट है, अब संतोषम तो उन्नरो वो जोगू रामन्ना को डाल दे। जो जोगू रामन्ना को खिलाफ है उसको हराने के लिए तैयार है, उसका अविनीति अक्रमाल अन्निటి మీద యుద్ధం చేసే వాళ్ళు सब लोग कांग्रेस पार्टी को डालिए, कांग्रेस पार्टी को डालिए। इससे मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। इतना शॉर्ट नोटिस में आप इधर आए, मेरा बात मान के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। आओ आओ
जरूर। एक यानी बात करते समय थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रहा। अब हमारे राजस्थान साहब हमारे रशीद भाई ये बात कर रहे, हमारे माइनॉरिटी को टीआरएस को वोट डालते सुप्रीम में, टीआरएस को वोट डाले तो जोगीराव हमारा जीता। अगर जोगीराव टीआरएस को वोट नहीं डाले, अपन कांग्रेस को वोट डाले तो 5 सेकंड जीता। अगर किसी से कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करें, ये हमारा फर्ज है। अब जैसे इलेक्शन करीब आ रहा, बहुत से हमारे मुसलमान वोटरों के कॉन्ट्रैक्टर्स भी वो आना शुरू हो जाते हैं, गलत गाइडेंस देते हैं, हमको अगर गलत बोलते हैं। हम ये अगर वादा यहाँ कर रहे हैं हम सबका सपोर्ट करेंगे, तो हम एज ए मुसलमान सबका सपोर्ट करेंगे। ये मुसलमान होने का निशान है। गरीब ने तो लाभ नहीं आया उसकी बात, इन्हें आया इसकी बात नहीं करना है। अगर इतने लोग भी हम ये याद करें कि हम जैसे साहब से वादा करें हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम इतने नहीं है, ऐसा 10 है हमारे पास। यानी अगर यहाँ सुबह तो 1000 आदमी है इस वक्त बोले से, क्योंकि हमारे घर में 8-9 है, नहीं है बोले से। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ आकर हम जितना बोल रहे उस पर अमल करो, इंशाल्लाह जीत होगी। अब आगे बढ़ेंगे, देखो कांग्रेस को मुसलमान होता है, बीजेपी भैया